Dear learners, welcome back to NS English Academy. Hope you all practicing PYQs nowadays for upcoming UGC NEET English Literature examination. This is Sonia. Guys, let's continue series where I have discussed complete 200 question हम लोगों ने डिस्कस किए थे from the literary criticism बिगनिंग टू प्रेजेंट. आज मैं आपके साथ 201 क्वेश्चन नंबर से स्टार्ट कर रहे हो और मोस्ट ऑफ दी वी विल डिस्कस इन टुडेज वीडियो में बी 150 प्लस क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे, यानी कि आपका 350 आई टारगेट टू कंप्लीट इन टुडेज वीडियो ऑफ माइंड. लेट्स प्रैक्टिस दीज क्वेश्चन. और मैं आपको बता दूं ये सभी क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट हैं. इनफैक्ट दीज ऑल क्वेश्चन पिक्ड फ्रॉम दी सेट एग्जामिनेशन ऑफ स्टेट लेवल्स as well UGC NET English examination past papers. Okay, so you keep in your mind and don't worry about the content. Okay, so let's start today's question. 201. The end of writing is to instruct. The end of poetry is to instruct by pleasing. Who has said this? So in my last video I would discuss about the Dr. Johnson's based on questions. So this is the statement by Dr. Johnson. Now the next question, regarding the observance of three classical unities in a play, Dr. Johnson observed that. What he observed? Answer number, option number C, only the unity of action should be observed according to Dr. Johnson in the play. Right? Now the next question, 203, Dr. Johnson meticulously looked for the correctness of. So he actually looked for the form. Right? Question number 204. Who defined essay as a loose sally of mind, an irregular, undigested piece, not a regular and orderly performance? So this is important statement by Dr. Johnson. Again we have 205 question. Dr. Johnson gave a new interpretation to the term of. Basically we have the answer imitations. Okay. Abhi next question, which of the following critical works has not been written by Dr. Johnson? So here we have some important works that repeated in examination of your Lives of the Poets, Preface to the Plays of Shakespeare, Rasselas, Essay on Criticism. Now you have to select which is the work not written by Dr. Johnson. So guys, option 1, Lives of the Poet. This is important work which was written by Dr. Samuel Johnson, which is considered important of course, क्योंकि एग्जामिनेशन में यहाँ से आपको क्वेश्चन डेफिनेटली मिलता है इन क्रोनोलॉजी और मैचिंग्स क्वेश्चन में. तो इसका जो फुल टाइटल भी है, प्रीफेसेस बायोग्राफिकल एंड क्रिटिकल टू द वर्क्स ऑफ इंग्लिश पोइट्स. तो मैं आपको बता दूं दिस इंपॉर्टेंट जो बेसिकली वर्क है इनका, इसमें आपको बायोग्राफीज, क्रिटिकल इवेल्युएशंस मिल जाएगा 52 पोइट्स का. ठीक है, सो टोटल 52 पॉइंट्स बेसिकली ही डिस्कस इन दिस मेजर वर्क, जिसमें आपको मिल्टन, ड्रेडन, पॉप, ग्रे, स्विफ्ट, एडिसन जैसे मिल जाएंगे मेजर पॉइंट जिन्हें डिस्कस किया है आपके जॉनसन ने. इनफैक्ट जॉनसन एस्टैब्लिश द पैटर्न ऑफ बायोग्राफिकल क्रिटिसिज्म विद द हेल्प ऑफ दिस इंपॉर्टेंट वर्क. और ये जो इनका वर्क है इट इज 1779. ये चीज़ आपने ध्यान में रखना है. 1781 राइट. एंड इसमें आपको ब्लेंडिंग्स मिल जाएगा बायोग्राफी, क्रिटिसिज्म एंड मोरल कमेंट्री का. अभी नेक्स्ट टॉक अबाउट प्रीफेस टू द प्लेज ऑफ शेक्सपियर. प्लेज प्रीफेस टू शेक्सपियर्स प्ले. सो ये भी आपका सैमुअल जॉनसन का है, विच वॉज केम 1765. तो मैं आपको बता दूं इट इज़ रिटन एन इंट्रोडक्शन टू जॉनसन्स एडिशन ऑफ शेक्सपियर. It considered of course greatest piece of Shakespearean criticism in the 18th century, जहाँ पर बेसिकली जॉनसन ने प्रेस किया है शेक्सपियर की यूनिवर्सली ऑफ कैरेक्टर्स को लेके, टाइमलेस रिप्रेजेंटेशन को लेके, एज वेल he just talk about general nature, right? So these are important things I have discussed with you all regarding this important work. और मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, he rejects the idea that drama must follow Aristotelian unities in this work, right? And next we have Rasselas. इट इज़ अगेन बाय सैमुअल जॉनसन. ठीक है, और ये बेसिकली इनका फिलोसॉफिकल टेल है, मोरल टेल है, बेसिकली फेबल यू गाइस कैन से. इट वाज रिटन इन अ वीक टू पे फॉर हिज मदर्स फनरल एक्सपेंस. ठीक है, सो इट वाज केम 1759. ईयर आपको ध्यान में रखना है. और जो नेक्स्ट वर्क वी हैव एन एस्से ऑन क्रिटिसिज्म, इट इज़ नॉट रिटन बाय डॉक्टर जॉनसन, अदरवाइज इट वॉज रिटन बाय अलेक्जेंडर द पोप. ठीक है, 1688 टू 1744 जो आपके लीडिंग पॉइंट है ऑफ कोर्स ऑगस्टन एज के. और ये जो इनका वर्क है 1711 में बेसिकली आ रहा है. ठीक है, सो ये तो मैंने आपको अलेक्जेंडर पॉप का टाइमलाइन यहाँ पे मेंशन किया था. ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म आपका 1711 में आ रहा है.
और इट वॉज रिटन व्हेन पॉप वॉज ओनली 20 years old, राइट. ये इनका वर्ड्स ऐसे है, हेरोइक कपलेट्स ही यूज्ड, और यू सी दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पर्सपेक्टिव, जो बेसिकली इन्फ्लुएंस था बाय हॉरेस, अरिस्टोटल, क्विंटिलियन और लंजाइनस. ठीक है, जहां पर इन्होंने ट्रू टेस्ट के बारे में बताया कि क्या टेस्ट होना चाहिए, नेचुरल नॉट आर्टिफिशियल, right? So we have discussed here, or the answer we have option number D to this question. Abhi next question we have 207. Who is without doubt a new classical critic, but it does not mean a blind surrender to authority of ancient or modern, rather he is for liberty. So here we have the answer, Dryden. Okay, no, not Dryden, actually Dr. Johnson, right? So next question we have 208. Dr. Johnson observe, keep in your mind the statement by poetry is an imitation of particular with which it deals, but through it the universal. This definition of poetry occurs in, so basically ये जो इनका poetry है और जो डेफिनेशन है बेसिकली पोएट्री का, इट अगर इन प्रीफेस टू शेक्सपियर, अभी मैंने आपको पीछे डिस्कस कराया, दैट वाज 1765, so it's a part of it. Abhi next question we have, which of the unities Dr. Johnson found justified by reason? So answer we have unity of action, right? Next, who is the author of the famous biography Life of Johnson? Simply we have the answer, बॉसवेल. और इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एग्जामिनेशन में कई बार रिपीट हो रहा है मैचिंग्स क्वेश्चन में, आपको इसको पर्टिकुलरली स्टडी करना है. ठीक है, इसके फैक्ट्स देखने जो मैं आपको बता चुकी हूँ इन पास्ट वीडियोज ऑफ माइंड. ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन 211. जॉनसन स्टार्टेड द पब्लिकेशन ऑफ 2 जर्नल्स, दे आर, सो आंसर भी है द रैम्बलर एंड द आइडलर. ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम विच किंग डॉक्टर जॉनसन रिसीव्ड एनुअल पेंशंस ऑफ 300 pounds? सो आंसर भी है George the Third. ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वी हैव, who has written dictionary of English language, the first ambitious attempt at an English lexicon? Dr. Johnson, right? अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, Johnson's literary club which had Burke, Gibbon, Goldsmith and indeed all the great literary men and politicians of the time as members was formed in the year? So answer we have 1764. जस्ट कीप इन योर माइंड जॉनसन्स लिटरेरी क्लब, यहाँ से भी आपको क्वेश्चन बनी है एग्जामिनेशन में, सो जस्ट कीप इन योर माइंड. हु फॉर द फर्स्ट टाइम डिस्क्रिमिनेट बिटवीन इमेजिनेशन एंड फैंसी? सो आंसर वी हैव सैम्यूल टेलर कॉलरिज, ऑप्शन नंबर सी. और यू सी इनका जो बायोग्राफिया लिटरेरी आया था विच वॉज पब्लिश्ड 1817, इन दैट पर्टिकुलर वर्क ही डिस्कस्ड अबाउट दिस इंपॉर्टेंट दैट कंसर्न ऑफ टुडेज क्वेश्चन, जो 215 हमारा है. अभी नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, वर्ड्सवर्थ प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेट्स इज अ लैंडमार्क बिकॉज, व्हाई इट कंसिडर द लैंडमार्क? क्योंकि ही मेक्स अ क्रिटिकल स्टेटमेंट फॉर द न्यू रोमांटिक पोएट्री, दैट्स व्हाई इट कंसिडर of course landmark. Okay, question number 217, who said imagination is the power of depicting and fancy of yoking and combining? So guys, here the answer we have option number C, Coleridge. Okay, abhi next question, William Wordsworth believed that imagination is a creative faculty and fancy merely associative and decorative. Is it a correct description? So it's a right description. Okay, abhi next we have preface to lyrical ballads was published in, so it was published in 1800. सो गाइज इस क्वेश्चन में थोड़ा लिटिल बिट कन्फ्यूजन है क्योंकि हमारे पास बोथ दी एजेस हैं, लाइक ईयर्स हैं, लाइक 1800 एंड 1798. तो लिरिकल बैलेट्स वाज फर्स्ट पब्लिश इन 1798. वी ऑल नो अबाउट जॉइंट वर्क है विलियम वर्ड्सवर्थ एंड कॉलरिज का. बट इसका जो सेकंड एक्सपेंडेड एडिशन आया था विद वर्ड्सवर्थ प्रीफेस केम इन 1800. सो एक्चुअल मैनर में जो कंप्लीट आपका पब्लिश हो रहा है फर्स्ट, इट इज़ इन 1800. सो वी गो टूवर्ड्स दी 1800, राइट. और फर्दर भी इसका एडिशन आया था विच केम 1802. इम्पॉर्टेंट रिवीजन था बेसिकली उसमें, तो नेक्स्ट 1802 में आ रहा है. तो ओवरऑल लिरिकल बैलेट्स का फर्स्ट एडिशन 1798, सेकंड विद प्रीफेस के साथ. ये फर्स्ट बेसिकली अगर प्रीफेस के साथ में अगर कहूँगी तो इट वाज फर्स्ट पब्लिश 1800 एंड रिवाइज इसका प्रीफेस आया था 1802 में. सो 3 ईयर्स आपको अच्छे से क्लियर है.
अकॉर्डिंगली आपने आंसर करना है. ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव Wordsworth and Coleridge defined poetry as an overflow of powerful feeling, but it was tempered by saying that it was emotion recollected in tranquility. ठीक है, so hope you understand here. अभी next question we have, where has Wordsworth written the following? I have never given way to my own feelings in personifying natural objects without bringing all that I have said to a rigorous after test of good sense. So this is from letter to W.R. Hamilton, December 23, 1829. सो बेसिकली यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है जिसके बारे में रिगार्डिंग उन्होंने आपसे इन्फॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछा है एंड वी हैव जस्ट आंसर्ड इट. इट्स अ लेटर टू W.R. Hamilton, December 23, 1829. Okay. Next question, 222. What idea is contained in the following lines of Wordsworth's verse? And then my heart with pleasure fills and dances with the daffodils. Right? So answer we have option number A. You see, poetry must be. तो बेसिकली यहाँ पे लाइन जो है, द म्यूजिक इन माई हर्ट आई बॉर्ड लॉन्ग आफ्टर इट वॉज हर्ट नो मोर. सो पोएट्री मस्ट बी सब्जेक्टेड टू रिगोरस आफ्टर टेस्ट ऑफ गुड सेंस. ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव क्वेश्चन नंबर 223. नाउ इट्स वेरी लॉन्ग क्वेश्चन, तो मैं आपको रीड कर देती हूँ ओनली वंस बिकॉज ये लॉन्ग क्वेश्चन होते लेंदी हैं बट दे आर वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. राइट, हु हैज़ रिटन द फॉलोइंग सेंटेंस? हम्बल एंड रस्टिक लाइफ वॉज जनरली चूजन बिकॉज इन दैट कंडीशन द एसेंशियल पैशंस of the heart find a better soil in which they can attain their maturity, are less under restraint and speak a plainer and more emphatic language because in that condition of their life our elementary feelings coexist in a state of greater simplicity and consequently may be more accurately contemplated and more forcibly communicated. So these are the lines from Wordsworth in Preface to Lyrical Ballads. I think it's very boring, but you don't worry, you have to just only look up at least once. Okay, who has written these important lines? Poetry sheds no tears such as angels weep, but natural and human tears she can boast of no celestial echo that distinguish her vital juice from those of prose. The same human blood circulates through the veins of them both. So these are associated with William Wordsworth. Okay. Again we have based on line, who has said this? The achievement of Coleridge is rightly held to be supreme among the English critics. So answer we have George Watson. सो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, जॉर्ज वेटसन जो है ब्रिटिश लिटरेरी क्रिटिक हैं, हिस्टोरियन है, ऑफकोर्स बाय बिब्लियोग्राफर है और बेस्ट नोन फॉर हिज वर्क बिब्लियोग्राफी एंड लिटरेरी हिस्ट्री के लिए हम इनको जानते हैं, जैसे द न्यू कैम्ब्रिज हो गया. ठीक है, तो सो एंड सो फोर्थ. अभी नेक्स्ट वी हैव, हु कॉल्ड कॉलरिज द मेडिएटर बिटवीन जर्मनी एंड इंग्लैंड? सो वी हैव द आंसर रीन वैलेक. अभी रीन वैलेक कौन है? सो गाइज ये जो आपकी रीन वैलेक है, मैं आपको बता दूं इन हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न क्रिटिसिज्म की अगर मैं बात करूं, हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न क्रिटिसिज्म, उसमें आप देखेंगे वैलेक ने बोला था, यानी कि जो आपके रीन वैलेक है, ही सेड कॉलरिज ब्रॉड जर्मन रोमांटिक्स फिलोसफी इनटू इंग्लिश लिटरेरी क्रिटिसिज्म. ठीक है, तो दिस इज द एसोसिएशन. सो दैट्स वाई जो रीन वैलेक है उन्होंने कॉलरिज को मेडिएटर बिटवीन जर्मन थ्रो थॉट एंड इंग्लिश क्रिटिसिज्म कंसीडर किया था. ठीक है, नेक्स्ट वी हैव, फॉर कॉलरिज अ पोएम इज नॉट अ मशीन एंड यू कांट राइट इट ऑफ. हु सेड दिस? सो दिस इंपॉर्टेंट लाइन इज बाय जॉर्ज वेटसन. सो गाइस जो आपके जॉर्ज वेटसन ने, इन्होंने अपने डिस्कशन ऑफ रोमांटिक क्रिटिसिज्म में बेसिकली कॉलरिज की थ्योरी ऑफ इमेजिनेशन एंड ऑर्गेनिक फॉर्म के लिए ये बेसिकली स्टेटमेंट दिया था, क्योंकि यहाँ पर वेटसन बोलते हैं कि जो कॉलरिज का आइडिया होता है वो ऑर्गेनिक फॉर्म को लेकर है और पोएट्री इज नॉट लाइक अ मशीन built by assembling parts. A poem grows organically shaped by the imagination, not by the mechanical rules. तो with this regard उन्होंने ये चीज़ बोला था. ठीक है, अभी next we have, Coleridge was influenced in his critical thoughts by. So Coleridge influenced किसके साथ थे? So answer we have friends option number A basically Immanuel Kant.
सो फ्रेंड्स, इन दिस रिगार्ड मैं आपको बता दूं, जो इम्यूनल कांत हैं, कॉलरिज जो है रीड करते हैं कांट के जितने भी क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन एंड क्रिटिक ऑफ जजमेंट को लेकर हैं। सो ओवरऑल ये कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है विद फिलोसॉफी ऑफ इम्यूनल। सो बेसिकली रीजन वर्सेस अंडरस्टैंडिंग, इमेजिनेशन वर्सेस आपको देखने मिल जाएगा प्रायर नॉलेज आपको मिल जाएगा। सो ओवरऑल जो आपके कॉलरिज हैं, बिकॉज ऑफ थियोरी ऑफ इमेजिनेशन, रीजन वर्सेस अंडरस्टैंडिंग की वजह से कहीं ना कहीं जो कैंथ हैं, जो इम्यूनल कैंथ हैं, उनसे काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहे हैं। इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है, इनको इंटरकनेक्ट करके आपको इस फैक्ट्स को ज़रूर से सजेस्ट करना है। अभी नेक्स्ट वी हैव 229, कॉलरिज क्रिटिसिज्म इज। तो कॉलरिज का जो क्रिटिसिज्म है दैट इज़ बेस्ड ऑन, सो गाइज वी हैव लेजिस्लेटिव, ऑप्शन नंबर सी। तो आप देखेंगे ही डज नॉट मेयरली एक्चुअली डिस्क्राइब पोएट्री, ही प्रिस्क्राइब प्रिंसिपल्स, लाइक ही ले डाउन रूल्स अबाउट इट, या लाइक इमेजिनेशन हो गया, ऑर्गेनिक फॉर्म हो गया, पोएटिक लैंग्वेज हो गया। तो ही करेक्ट एंड जज दी वर्ड्सवर्थ, राइट, विच इज लेजिस्लेटिव एक्ट, राइट। तो ही बिल्ट अ होल फिलोसॉफिकल सिस्टम ऑफ पोएट्री, राइट। दैट्स वाई जो इनका एक डिस्क्राइब वे है दैट इज वी हैव लेजिस्लेटिव। ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, इन टर्म्स ऑफ सब्जेक्ट्स कॉलरिज डिस्क्रिप्टिव क्रिटिसिज्म falls into two groups. So answer we have option number B, miscellany of comments on various poets, right? Now the next question, in which chapter of Biographia Literaria Coleridge examines and rejects Wordsworth's statement on real life and language of rustics, right? So answer we have option number B, it is 17. Hope you understand here. अभी next we have, who said this? इमेजिनेशन आई होल्ड, मैं ये स्टेटमेंट वाला क्विट कर रही हूँ अभी। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। हु कॉइन द टर्म एग्जाम्प्लास्टिक एंड व्हाट डज इट मीन, राइट? सो आंसर वी हैव कॉलरिज, इट मीन्स यूनिफाइंग। तो ये जो टर्म है इट वॉज कॉइंड बाय, और फ्रेंड्स एस टी कॉलरिज का जो वर्क आया था बायोग्राफिया लिटरेरिया 1817 में, इन दैट वर्क ही कॉइंड दिस टर्म इज़ेम्प्लास्टिक, जो बेसिकली ग्रीक से आया है और ये डिस्क्राइब करता है ऑफ कोर्स पावर ऑफ द सेकेंडरी इमेजिनेशन। तो कहीं ना कहीं कॉन्सन है सेकेंडरी इमेजिनेशन। होप यू अंडरस्टैंड हियर। एंड इट कहीं ना कहीं जस्ट यूनिफाई कर रहा है पावर ऑफ द इमेजिनेशन को, जो किस तरीके से फ्यूजेस है डिफरेंट आइडियाज इनटू वन ऑर्गेनिक होल में। सो बेसिकली कॉलरिज, और इसका मीनिंग है बेसिकली आपका यूनिफाइंग, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, whose poetry struck Coleridge as remarkable, what did he say? So answer we have delightful thought. It's very easy question. Abhi next we have, who has written this? Poetry always contains a pinch of untruth. The philosophic spirit gives us the habit of nothing. This untruth and goodbye poetic illusion, goodbye poetic effect. So किसका है ये? डेनिस डिटरॉट का, ठीक है। So guys, if you don't have knowledge about this author Denis Diderot, the name है we have Diderot करके। so ये फ्रेंच इनलाइटनमेंट, तो इनका एसोसिएशन है बेसिकली फ्रेंच इनलाइटनमेंट से। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। फिलोसोफर हैं, क्रिटिक हैं, नॉवलिस्ट एंड एडिटर भी हैं, वन ऑफ दी सेंट्रल फिगर भी कंसिडर किए जाते हैं फ्रेंच इनलाइटनमेंट के, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अभी नेक्स्ट वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन, अ डिफेंस ऑफ पोएट्री इज एन एंथ्यूसियास्टिक rebuttal to his friend's book The Four Ages of Poetry. Who is this friend? So we have the friend Thomas Love Peacock. सो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं पीबी शैली के क्लोज फ्रेंड रहे हैं थॉमस लव पिकॉक, और इनका जो ये वर्क है इट वाज पब्लिश्ड 1820, 1820 में पब्लिश हो रहा है ये वर्क इनका, जो मेंशन है यहाँ पर द फोर एजेस ऑफ पोएट्री। और इट्स अ सटायरिकल एसे जहाँ पर इन्होंने अटैक किया था यूजफुलनेस ऑफ पोएट्री इन द मॉडर्न इंडस्ट्रियल साइंटिफिक एज, ठीक है। तो पिकॉक ने इसे डिवाइड किया था फर्दर द हिस्ट्री ऑफ पोएट्री इनटू फोर एजेस, जिसमें इन्होंने द आयरन एज, द गोल्डन एज एंड द सिल्वर एज, देन आफ्टर द ब्रॉन्ज एज इन्होंने कंसिडर किया था, जिसे मॉडर्न एज बोलते हैं। और यहाँ से आपको क्वेश्चन मिली है, सो जस्ट कीप इन योर माइंड, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको फर्दर डिस्कस रिवाइज करने हैं। द आयरन एज किस तरीके से प्रिमिटिव बार्ड्स कंसिडर किया जाता था, यहाँ पर मतलब जो पोइट्री रहती है वो हीरोइक सॉन्ग्स और लाइक अर्ली बैलेट्स को डिनोट करता है। गोल्डन एज इपिक पोएट्री को, यानी कि होमर और वर्जिल की, जहाँ पर नोबल डीड्स को सेलिब्रेट हो रहा है, हीरोज़ को सेलिब्रेट किया जा रहा है। सिल्वर एज में फिलोसॉफिकल रिफ्लेक्टिव पोएट्री इसको बोला जाता है। सो एंड सो फोर्थ आपको रिवाइज करना है अपने एग्जाम की पर्सपेक्टिव। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, हु हैज़ डिफेंडेड पोएट्री इन दीज वर्ड्स?
कौन डिफाइन कर रहा है पोएट्री, ध्यान से इसको स्टडी कीजिएगा, इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। पोएट्री इज द रिकॉर्ड ऑफ द बेस्ट एंड हैप्पीएस्ट मूवमेंट सॉरी ऑफ द हैप्पीएस्ट एंड बेस्ट माइंड्स. It is as it were the interpretations of a diviner nature through our own. So these are the lines associated with P.B. Shelley. So guys, here we have next question. Matthew Arnold was opposed to. So answer we have Philistinism. तो मैं आपको बता दूं जो फिलिस्तीन है, समवन जो मटेरियलिस्टिक या फिर नैरो माइंडेड होते हैं या इनडिफरेंट होते हैं टू कल्चर को या आर्ट को लेके, तो आर्नोल्ड जो है आपके मैथ्यू आर्नोल्ड यूज द टर्म ऑफ क्रिटिसाइज मिडिल क्लास सोसाइटी दैट वैल्यूज कंफर्ट वेल्थ एंड रूटीन ओवर कल्चर. तो उनको बेसिकली इन्होंने क्रिटिसाइज किया था एंड दिस basically opposed to Philistinism. Hope you understand here. So next question we have, Arnold seeks to bring about a harmony between Hebraism and, so answer we have Hellenism. ठीक है. Who said poetry is a criticism of life under curtains? So these are by Matthew Arnold. And in which text does Matthew Arnold say that poetry is superior to history? In which? The study of poetry, right? Which is basically published 1880. जो इनका पब्लिश हो रहा है ये इनका कलेक्शन है ऑफ 6 लेक्चर्स जो इन्होंने ऑक्सफोर्ड में बेसिकली डिलीवर्ड किए थे सेम ईयर. और आर्नोल्ड के जो मेजर वर्क हैं ऑन पोएटिक थ्योरी एंड क्रिटिसिज्म बेस्ड ऑन. ठीक है, तो यहाँ पर इन लोग का जो पर्पस था इट इज़ ऑफ पोएट्री ऑफ कोर्स. तो ही जस्ट टॉक अबाउट हाई सीरियसनेस, ट्रूथ ऑफ थॉट एंड पोएट्री का क्या रोल है सोसाइटी में. सो ये सभी चीज़ें एज वेल ग्रेट पोएट सो एंड सो फोर थिंग्स ही डिस्कस इन दिस कलेक्शन ऑफ इम्पॉर्टेंट फॉर एग्जाम परस्पेक्टिव जो इन्होंने डिलीवर्ड किया था. 6 लेक्चर्स, यू कीप इन योर माइंड, 6 लेक्चर्स थे बेसिकली इन. ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, इन वर्ड्सवर्थ आर्नल्ड कोलैबोरेट्स ऑन हिज आइडिया ऑफ. इन वर्ड्सवर्थ जो इनका बेसिकली वर्ड्सवर्थ नाम इन्होंने, सो गाइस ये जो टाइटल था वर्ड्सवर्थ यू सी इन दी इनका जो आर्नल्ड के एसेज आए थे क्रिटिसिज्म को लेके 1865 और जो 1888 में रिवाइज्ड हुए थे, जहाँ इन्होंने बेसिकली फोकस किया था वर्ड्सवर्थ को एज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पोएट एंड इंग्लिश रोमांटिक मूवमेंट. ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने पूछा है कि जो बेसिकली वर्ड्सवर्थ था इनका टाइटल, आर्नोल्ड ने वो कोलैबोरेट किया है ऑन हिज आइडिया ऑफ, किसके बेसिकली आइडिया को कोलैबोरेट किया है. सो आंसर भी है पोएट्री. होप यू अंडरस्टैंड नाउ द क्वेश्चन एज वेल द आंसर टू. अभी नेक्स्ट वी हैव, हु सेड दैट द ग्रेटनेस ऑफ वर्ड्सवर्थ वाज सॉरी एज अ पोएट लाइज इन हिज शॉर्टर पीसेस. हु सेड दिस? मैथ्यू आर्नल्ड. अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉन किट्स अकॉर्डिंग टू मैथ्यू आर्नल्ड वाज डिफिशिएंट इन द इरा ऑफ, इन द इरा और इन द एरिया ऑफ. Answer we have option number A, moral interpretation, right? Abhi next question, Arnold's high concepts of poetry results from his moral bias. ठीक है, next we have, Arnold gives us a brief critical survey of English poetry in Essay in Criticism. Dover Beach, the study of poetry. These are important, repeated in examination of your answer. We have essay on criticism, in criticism. ठीक है, Arnold was the first English critic to insist on the necessity of comparative criticism. Okay. Next question, who said Arnold's outlook is honest and frank and often, penetrating? So we have Kazemian, right? Who Kazemian? सो गाइस ये जो बेसिकली कैजेमियन है, अगर आप मैं इनका कंप्लीट नाम बताऊँ, लुइस कैजेमियन है. ये आपके बेसिकली ये काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहे हैं जो कल्चर एंड क्रिटिसिज्म पर बेसिकली मैथ्यू आर्नल्ड ने आइडियाज़ दिए हैं, इन लिटरेचर में कंट्रीब्यूशन दिया है, तो उसको कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहा है आपके कैजेमियन पर, राइट. तो इस चीज़ का आपने ध्यान में रखना है और इनका यही कनेक्शन है विद मैथ्यू आर्नल्ड. अदरवाइज ये एक फ्रेंच एकेडमिक लिटरेरी क्रिटिक हैं स्पेशली इंग्लिश लिटरेचर में, राइट. सो इसीलिए इन्होंने देखिए आर्नल्ड्स को बोला है कि जो आर्नल्ड का आउटलुक है इज़ ऑनेस्ट एंड फ्रैंक है एंड ऑफन पेनिट्रेटिंग. ठीक है, अभी नेक्स्ट वी हैव, एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ आर्नल्ड्स क्लासिसिज्म वॉज हिज कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रैंड स्टाइल. ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर इज अ प्लेंटी ऑफ आयरनिक बैंटर इन, वी हैव द फंक्शंस ऑफ क्रिटिसिज्म एट द प्रेजेंट टाइम, राइट. अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, हु कॉल्ड Shelley a beautiful and infactual angel, beating in the void his luminous wings in vain.
आंसर वी हैव मैथ्यू आर्नल्ड. ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन. हु कॉल्ड अ पोएट एंड फिलोसोफर रैग्ड इन द मिस्ट ऑफ ओपियम? हु सेड, हु कॉल्ड किसको बोला है, नॉट हु सेड, किसको बोला है, आर्नल्ड को. सो फ्रेंड्स यहाँ पर पूछा था हु कॉल्ड, तो मैथ्यू आर्नल्ड ने ऐसा कहा, बट किसके लिए कहा, दिस इज फॉर कॉलरिज. ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है, ठीक है. अपने कॉन्टेक्स्ट जो उनका एसे इन क्रिटिसिज्म करके आया था, तो वहाँ पे आर्नल्ड ने प्रेस किया था कॉलरिज का, जो एक इंटेलेक्चुअल एंड पोइटिक जो जीनियस है, राइट. इस चीज़ का ध्यान में रखिएगा. अभी नेक्स्ट वी हैव द क्वेश्चन. पैटर्स फर्स्ट एसेज अपीयर्ड इन बुक फॉर्म इन. So friends, answer we have to this question option number C, studies in the history of Renaissance. तो यहाँ पूछा है वॉल्टर पैटर जो बेसिकली आपके ऑथर हैं. सो बेसिकली इनका जो फर्स्ट एसेज आया था, यानी कि जो इनका मतलब कलेक्शन ऑफ एसेज है, ठीक है. सो यहाँ पर उन्होंने पूछा है कि अपीयर इन द बुक फॉर्म, तो बुक वी हैव स्टडीज इन द हिस्ट्री ऑफ रेनेसा. इस चीज़ का आपने ध्यान में रखना है. एंड इसका जो फर्स्ट एडिशन आया था इट वॉज केम इन 1873. ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है. ओके, अभी नेक्स्ट वी हैव वॉल्टर पैटर इमेजिनरी पोर्ट्रेट्स डील्स विद, इट वॉज डील्स विद आर्टिस्ट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. लिटरेरी थीम आर डील्ड इन पैटर्स, यानी कि वॉल्टर पैटर्स के जो लिटरेरी थीम है मतलब डील्ड विद. सो ऑफ कोर्स द आंसर भी है एप्रिसिएशंस. सो मैं आपको बता दूं एप्रिसिएशंस क्या है. ये इनका लेटर रिवाइज्ड एंड एक्सपेंडेड एडिशन है. वर पब्लिश्ड सम एसेज बिकेम पार्ट ऑफ एप्रिसिएशंस, जो इनका 1889 में आया था. ठीक है, ये चीज़ भी आपने ध्यान में रखनी है रिगार्डिंग दिस. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन. वॉल्टर पैटर्स मैरियस द एपिक्यूरियन is a remarkable. What is it? It's a philosophical novel. So friends, here I discuss about some important facts regarding Walter Pater too. तो Walter Pater आपके English essayist हैं, critic and novelist हैं, राइट. एंड लीडिंग फिगर है मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्थेटिक मूवमेंट की, जहाँ पर आर्ट फॉर आर्ट सेक को कहीं ना कहीं एम्फेसाइज किया जाता है और मेन मोटो है, राइट. सो बेसिकली इनके जो बेस्ट नॉन वर्क है, अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया, स्टडीज इन द हिस्ट्री ऑफ द रेनेसा आपको स्टडी करना है 1873, एप्रिसिएशंस विद एन एसे ऑन स्टाइल 1889, और मैरियस द एपिक्यूरियन जो बेसिकली इस क्वेश्चन में मेंशन है, जो इनका एक फिलोसोफिकल नॉवल है, इन जो 1885 में पब्लिश हो रहा है. इन सभी को आपने स्टडी करना है. किस तरीके से ही नोन फॉर डेंस हाईली पॉलिश्ड प्रॉस के लिए हम इनको जानते हैं. और ये इनका जो फिलोसॉफिकल नॉवल है मैरियस एपिक्यूरियन जो 1885 में आ रहा है मेंशन हियर. तो यहाँ पर एक जो मैरियस है वो एक यंग रोमन इन सेकेंड सेंचुरी रोम, राइट, बेसिकली जहाँ पर सर्च किया जा रहा है फॉर मीनिंग, वर्च्यू एंड आइडियल लाइफ को. ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है. एक जगह है और दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एग्जाम पर्सपेक्टिव, बट नो नीड टू गो वेरी मच इन डिटेल, राइट. अभी नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव रिगार्डिंग वॉल्टर पैटर. इन हिज एसे on style in appreciations, Pater gives importance to, so he give importance towards the beauty of expression. As I told, he associated with aesthetic movement and he talks about arts for art's sake. So in that regard you guys can concern beauty of expression the answer to this question. तो आप smart guess करके भी answers तक पहुँच सकते हैं if you have little bit knowledge about your author, right. अभी we have Walter Pater in his writings is, सो इन हिज राइटिंग में ये क्या रहते हैं, बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिव रहते हैं. ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन. वॉल्टर पैटर बिलीव्ड द पावर ऑफ एवरी वर्ड एंड फ्रेजेस शुड बी वेटेड इन ऑर्डर टू गिव अ हार्ड एंड प्रॉपर शेप टू वॉक. ही ट्रीटेड वर्ड्स एज, कैसे ट्रीट करते हैं वो वर्ड्स को, प्रीशियस मेटल के जैसे, राइट. सो गाइज हियर वी हैव सम क्वेश्चन बेस्ड ऑन D.H. लॉरेंस बट एज अ क्रिटिक. ठीक है, तो मैं आपको बता दूं इंग्लिश नॉवलिस्ट, पोइट, एसेइस्ट के साथ साथ ये क्रिटिक भी हैं. फेमस फॉर नॉवल सन्स एंड लवर्स, विमेन इन लव, लेडी चैटरलेज लवर वी हैव स्टडीड, बट ऑल्सो अ लिटरेरी क्रिटिक एंड ट्रैवल राइटर ही इज़. ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है. ही वॉज एक्चुअली, हिज क्रिटिसिज्म जो है कहीं ना कहीं एम्फेसाइज करता है इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस को लेके एंड इंस्टिंक्ट पर बात करता है. ठीक है, तो मेजर इनके कुछ प्रिंसिपल्स हैं आपके D.H. लॉरेंस के, लाइक इनका जो क्रिटिसिज्म रहता है वो मस्ट बी वाइटल रहता है, लाइफ ओरिएंटेड रहता है. ठीक है, सो ये सभी चीज़ें स्टडी आपको करनी है. एज वेल
फोकस इनका कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल इंसाइट पर रहता है, मोरल डेप्थ को लेकर रहता है, आर्टिस्टिक सिंसियरिटी की ये बात करते हैं, राइट। सो यहाँ पर जो बेसिकली मेंशन है, आई एम जस्ट रीडिंग दिस क्वेश्चन, D.H. लॉरेंस ट्विलाइट इन इटली एंड सी एंड सार्डिनिया आर मार्क्ड बाय, राइट। तो मैं आपको बता दूं ट्विलाइट इन इटली इनका 1916 में आ रहा है, ट्रैवल एसे है, ठीक है, ट्रैवल राइटिंग है। सबसे पहली चीज़ तो आपने इस चीज़ को ध्यान में रखना है, व्हाट एग्जैक्टली इट इज़, ट्विलाइट इन इटली, राइट। ये जो इनका वर्क है दिस केम इन 1916 और ये इनका एक ट्रैवल ऐसे है, ठीक है। और सी एंड सार्डिनिया इनका यू कैन सी हियर, नेक्स्ट वन यहाँ पर है, दैट वॉज केम 1921, इट इज़ अगेन ट्रैवल बुक और नरेटिव ऑफ अ जर्नी ऑफ सार्डिनिया। तो इट इज़ मार्क्ड ऑफ कोर्स बाय ब्लेंडिंग्स ऑफ पर्सनल रिफ्लेक्शंस विद कल्चरल कॉमेंट्री। तो यहाँ पे आंसर है विवी शियसनेस एंड डिस्क्रिप्टिव ब्रिलियंस ऑफ टॉल्स्टॉय, डिकेंस एंड जॉर्ज इलियट, राइट। सो आप देखेंगे दीज आर इंपॉर्टेंट वर्क्स एज ए क्रिटिक ऑफ D.H. लॉरेंस के आपको रिवाइज्ड रखने एग्जाम पर्सपेक्टिव, ओके। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, अच्छा मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो मैं आपके साथ क्वेश्चन डिस्कस कर रही हूँ UGC नेट के लिए तो परफेक्ट है ही है फर्स्ट, राइट। एंड जितना भी सेट एग्जामिनेशन है अपार्ट फ्रॉम HPSC के जो एग्जामिनेशन होते हैं एज वेल, जो आपके प्रोफेसरशिप के हो रहे हैं एग्जामिनेशन, असिस्टेंट प्रोफेसर्स के लिए जो एंट्रेंस एग्जाम रहते हैं, एज वेल PhD के लिए, उन सभी एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव ये सभी जो क्वेश्चंस है ना आर रियली मोस्ट रेलिवेंट, राइट। सो बेसिकली एक ऑथर के बारे में हाउ मच वी हैव नॉलेज, उन सभी पर बेस्ड ऑन क्वेश्चंस हैं। स्टेटमेंट्स हो गए, यू सी अभी बहुत सारे स्टेटमेंट्स मैंने क्विट कर दिए, मैंने नहीं आपके साथ डिस्कस किए क्योंकि मुझे लग रहा था इट गोना बोरिंग फॉर यू ऑल, क्योंकि नेट एग्जामिनेशन में स्टेटमेंट्स आते हैं बट वी हैव फेमस, राइट, जो बेसिकली रिपीटेड फॉर्म में पूछे जाते हैं, सो दैट्स वाई आई डिड नॉट इंक्लूड हियर। अदरवाइज दीज ऑल स्टेटमेंट्स आर वेरी मेजर फॉर फर्दर स्टडी ऑफ योर, अगर आप फर्दर स्टडी करेंगे रिगार्डिंग जब आप प्रोफेसरशिप के लिए एग्जामिनेशन देंगे तो उन सभी में भी आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एग्जाम में रेलिवेंट होने वाले हैं जितने भी क्वेश्चंस हैं, ओके। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव डिस्कस दिस वन, ओके। 277, विच ट्रैवल स्केच इज कंसीडर लॉरेंस बेस्ट। तो ट्रैवल स्केच के बारे में यहाँ पे वो पूछ रहे हैं, सो आंसर भी है मॉर्निंग इन मैक्सिको। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं मॉर्निंग इन मैक्सिको D.H. लॉरेंस का कलेक्शन है ऑफ ट्रैवल एसेज एंड स्केचेस का, जिसे पोस्टमस पब्लिश कराया था 1927 में। अच्छा D.H. लॉरेंस का जो टाइम लाइन है इसे आपने ध्यान में रखना है क्योंकि यहाँ से भी आपको क्वेश्चन मिलती है। 1885 टू 1930 दिस इज द टाइम लाइन एंड ट्रैवल एसे का स्केचेस का कलेक्शन है, आई हैव डिस्कस्ड 1927 द ईयर व्हेन इट वाज पब्लिश, पोस्टमस इसे पब्लिश करा था। तो इसमें कॉम्बिनेशन आपको मिल जाएगा ट्रैवल नैरेटिव, पर्सनल रिफ्लेक्शंस एंड ऑफ कोर्स कल्चरल ऑब्जर्वेशन, राइट। सो यहाँ पर इन्होंने जो मैक्सिकन लैंडस्केप है ना, लाइफ है, और जो वहाँ का इंडिजीनस कल्चर है उसको इन्होंने फोकस किया है। होप यू अंडरस्टैंड हियर। अभी नेक्स्ट वर्क वी हैव, अकॉर्डिंग टू D.H. लॉरेंस द बेसिस ऑफ ह्यूमन सेंसुअलिटी वॉज, क्या बेसिस हो सकता है, सोलर प्लीलक्स, ओके, प्लीलक्स, ठीक है, जो भी है। अभी नेक्स्ट वी हैव D.H. Lawrence in his critical analysis of the unconscious and its role emphasized on the role of solar plexus. What is solar plexus? अभी आपको क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट इसका जो आंसर है वी हैव ऑप्शन नंबर ए, द स्कॉलर प्लेक्स इज द सीट ऑफ क्रिएटिव नॉलेज मोर वैल्यूएबल दैन द सेरिब्रल नॉलेज, इंस्टिंक्ट इज सुपीरियर टू इंटेलेक्ट। सो होप यू यहाँ पर अंडरस्टूड कर चुके हो कि वॉट एग्जैक्टली द मीन ऑफ दिस सोलर प्लेक्सियस एज वेल वॉट इज द रोल इन द लाइफ ऑफ और इन द वर्क्स ऑफ D.H. लॉरेंस, ओके। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इन स्टडीज इन क्लासिक अमेरिकन लिटरेचर व्हाट डज D.H. लॉरेंस राइट अबाउट मॉबी डिक। तो मैं आपको बता दूं D.H. लॉरेंस का स्टडीज इन क्लासिक अमेरिकन लिटरेचर जो 1923 में आ रहा है, कलेक्शन ऑफ एसेज है जहाँ पर ऑन मेजर अमेरिकन राइटर्स पर बेस्ड हो, जिसमें इन्होंने बेंजामिन फ्रैंकलिन, नदाइन हॉथरो, हरमन मेलविल, एडगर एलन पो, वॉल्ट विटमैन, मार्क ट्वेन जैसे मतलब इन सभी को फोकस किया है। और ये जो लॉरेंस का वर्क है 1923 में क्रिटिकल लैंडमार्क कंसिडर भी किया जाता है। तो मैं फॉर नॉलेज आपको बता रही हूँ। अच्छा यहाँ पर इन्होंने एडमायरेशन किया था फॉर मेलविल के लिए जो इनका मॉबी डिक है, तो ही कॉल्स मॉबी डिक वन ऑफ द ग्रेटेस्ट नॉवल इवन रिटन, और इन्होंने रिकॉग्नाइज भी किया था इट एज अ प्रोफाउंड एक्सप्लोरेशन ऑफ लाइफ, ह्यूमन नेचर एंड कॉमिक स्ट्रगल। तो यहाँ पर जो आपकी आंसर बन रही है दिस इज ऑप्शन नंबर डी,
right? It is several will hunting down the sensory insect. ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, आपने देखा होगा डीएच लॉरेंस को अभी तक हमने एज ए क्रिटिक नहीं, मैंने आपको रिवाइज कराया था, बट क्योंकि हम लोग लिटरेरी क्रिटिसिज्म यहाँ पे कवर कर रहे हैं फ्रॉम बिगिनिंग टू प्रेजेंट, तो जितने भी आपके ऑथर्स हैं एज ए क्रिटिकल वर्क उनके हम लोग उन्हें यहाँ पे मेंशन इनफैक्ट रिवाइज कर रहे हैं फॉर एग्जाम पर्सपेक्टिव, सो यू डोंट वरी अबाउट, ओके। अभी यहाँ पे पूछा उन्होंने, दीज लाइन्स शो हिज इसेंशियल मतलब डीएच लॉरेंस का philosophy, what do they suggest? We are transmitter of life, and when we fail to transmit life, life fails to flow through us. So यहाँ पर life is instinctual and a flow onward. ठीक है, so next question we have, D.H. Lawrence writes that even the rainbow has a body made of a drizzling rain. ठीक है, what is the idea he is trying to present? तो लॉरेंस believed in the concepts of instinct of body being wiser than the knowledge of the intellect, and he is celebrating the body, the instinct. Okay, see this is again informational question regarding D.H. Lawrence. In his major criticism जो आपके D.H. Lawrence है, he makes a distinction between, so answer we have institution and the mind, instinct of the body and intellect of the mind. ठीक है, अभी next question we have, which one of the following phrases has been coined by T.S. Eliot? So here we have some phrases: art for art's sake, suspension of disbelief, objective correlative, touchstone method. So guys, मैं आपको इन चारों ही ऑप्शंस का यहाँ पे आंसर सजेस्ट कर देती हूँ। सबसे पहले वी हैव आर्ट फॉर आर्ट सेक, तो ये जो आपका बेसिकली मतलब फ्रेज है, इट इज़ कोइंड बाय, ठीक है। तो सबसे पहले ये तो एस्थेटिक मूवमेंट का आइडिया है, जहाँ पर वॉटर पीटर एंड ऑस्कर वाइल्ड वी हैव स्टडीड। सो बेसिकली ये जो आपका टर्म है दैट इज़ फर्स्ट कोइंड बाय थियोफाइल गॉटियर। मैं लिख देती हूँ उनका नेम यहाँ पे, थोड़ा सा अजीब है, ये थोड़ा मेरा पेपर ना इट्स नॉट प्रॉपर इन वाइट कलर, दैट्स वाई यू कैन नॉट रीड इन प्रॉपर मैनर जो भी मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, ठीक है। जब भी मैं थोड़ा सा रिटर्न वर्क नहीं करती हूँ, जब मैं आपसे ये क्वेश्चंस वर्क डिस्कस कर रही हूँ, तो आर्ट फॉर आर्ट से जो है आपके थियोफाइल गॉटियर बेसिकली जो फ्रेंच पोइट है, उन्होंने इसे कॉइन किया था। देन आफ्टर इट गोज टूवर्ड्स द एस्थेटिक मूवमेंट। अभी नेक्स्ट वी हैव सस्पेंशन डिसबिलीफ, राइट। ये जो आपका है इट इज़ कॉइंड बाय सैमुअल टेलर कॉलरिज अपने वर्क बायोग्राफिया लिटरेरिया 1817। एंड नेक्स्ट वी हैव ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव, सो इट इज़ बाय T.S. Eliot एज द क्वेश्चन यू सी इन दिस वी हैव ऑन स्क्रीन। और इनका जो T.S. Eliot का हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स आया था 1919 में, इन दैट ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव ही कॉइंड, ओके। अभी नेक्स्ट वी हैव टच स्टोन मैथड, तो ये सभी आपके PYQs हैं ऑफ UGC नेट। द स्टडी ऑफ पोएट्री करके जो 1880 में मैथ्यू आर्नल्ड का वर्क आया है, सो इन दैट वर्क टच स्टोन मैथड बेसिकली कॉइंड, ओके, बाय मैथ्यू आर्नल्ड। सो वी हैव डन 4 नंबर्स ऑफ फ्रेजेस एज वेल दी जो इसको कॉइन किए हैं उनके नेम भी। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजेस हैज़ नॉट बीन कॉइन्ड बाय T.S. Eliot? अभी कौन सा उन्होंने नहीं किया है? सो देखिए, आर्ट फॉर आर्ट सेक्स, और वह भी मैंने आपको पीछे बता दिया। फ्रेंच आपके जो है अभी डिस्कस किया मैंने आपके साथ, जो आपके बेसिकली फ्रेंच पोइट है उन्होंने उसे कॉइन किया था। देन एस्थेटिक मूवमेंट्स के साथ एसोसिएशन है आर्ट फॉर आर्ट सेक का। अदरवाइज डिसोसिएशन सेंसिबिलिटी, यूनिफाइड सेंसिबिलिटी, ऑब्जेक्टिव कोरिलेशन, ये सभी आपके T.S. Eliot के थ्रू ही कॉइन किए गए हैं। नेक्स्ट वी हैव द फ्रेजेस ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव वाज फर्स्ट यूज इन Eliot। वो उन्होंने फर्स्ट कहाँ यूज़ किया है? अभी मैंने आपको बताया एसे ऑन हैमलेट 1919, राइट। दिस इज इंपॉर्टेंट। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स, अ सिचुएशन, अ चेन ऑफ इवेंट्स विच शैल बी द फॉर्मूला फॉर द पोएट्स इमोशंस, so that when the external facts are given, the emotions is at once evoked. The above lines define which of the following phrases of T.S. Eliot। तो यहाँ पे कुछ आपको डिफाइन किया है, कौन सा आपका फ्रेज डिफाइन किया है इन्होंने T.S. Eliot ने अपना? ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव, ओके। अभी नेक्स्ट वी हैव the phrase dissociation of sensibility was first used by Eliot in metaphysical poets में इन्होंने dissociation of sensibility को, क्योंकि ये चीज़ें भी आपको ध्यान में रखनी, these are all the part of PYQ of your net, okay। Which of the following statement many may be true about Eliot's criticism? So we have the first option, unification of sensibility means a fusion of thoughts and feelings. So this is Eliot's criticism true, right? अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म न्यू क्रिटिसिज्म वॉज फर्स्ट यूज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिटिक्स? सो किसने फर्स्ट इसे यूज किया है? सो आंसर वी हैव जॉयल ई स्पिंगन,
So guys, I have confusion in this question क्योंकि as the resources of I search, so where I get the answer, Joel is Spingarn. ठीक है, I don't know about this particular name, but according to my ये जो टर्म है न्यू क्रिटिसिज्म, इसको फर्स्ट यूज़ किया है जॉन क्रो रैंसम ने अपनी जो बुक आई थी द न्यू क्रिटिसिज्म 1941 में. सो आंसर गोज टू ऑप्शन नंबर बी, जॉन क्रो रैंसम. ठीक है, इस चीज़ का आपने ध्यान में रखना है. एंड इनका जो बुक आया था द न्यू क्रिटिसिज्म जो 1941 में आता है, इन दैट पर्टिकुलर बुक ही जस्ट यूज दिस टर्म फर्स्ट. तो क्वेश्चन भी यही है और अकॉर्डिंग टू मी आंसर भी यही, क्योंकि आंसर्स में ना ये ऑप्शन नंबर ए था. तो दैट्स वाई आई डोंट थिंक सो कि आंसर है ये, क्योंकि जॉन क्रो रैंसम भी स्टडीड. और बिफोर दैट आप देखेंगे जो फॉर्मलिस्ट एंड क्लोज रीडिंग अप्रोचेज एग्जिस्ट हुई थी लाइक आई ए रिचर्ड्स की इन इंग्लैंड में, बट द स्पेसिफिक जो लेबल न्यू क्रिटिसिज्म में ओरिजिनेट आपका कहीं ना कहीं रैंसम के साथ हो रहा है. ठीक है, तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखना है कि जो ये आपका रैंसम है, इन्होंने ही इस टर्म को कॉइन किया है, बेसिकली यूज्ड किया है फर्स्ट. सो ऑफ कोर्स इट इज कॉइन्ड. ओके, अभी नेक्स्ट वी हैव हु इज द ऑथर ऑफ द सैक्रेड वुड. सो गाइज मैं आपको बता दूं, इट इज़ बाय टी.एस. इलियट. ऑप्शन नंबर बी, सैक्रेड वुड. 1920 में इनका ये बेसिकली वर्क आ रहा है. एंड ऑफ कोर्स दिस इज़ इम्पॉर्टेंट क्योंकि इन्होंने इस पर्टिकुलर एसेज में, राइट, क्योंकि टी.एस. इलियट का द सैक्रेड वुड बेसिकली 1920 कलेक्शन ऑफ क्रिटिकल एसेज का है, राइट. और इसमें आप देखेंगे इन्होंने लिटरेरी क्रिटिसिज्म को कहीं ना कहीं कंटेन किया है और डिस्कशन दिया है ऑफ कोर्स अबाउट पोएट्री, ड्रामा एंड मॉडर्निस्ट प्रिंसिपल्स ऑफ फेमस एसेज जैसे ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट, हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम एंड द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म. तो ओवरऑल इट्स इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पर्सपेक्टिव. अभी नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिटिकल ओपिनियंस मे बी एसोसिएटेड विद टी.एस. इलियट. T.S. Eliot is against the romantic critics like Coleridge who judge a poet on the basis of their personal impressions and feelings. Such impressions can never be a safe guide. तो इसी चीज़ को बेसिकली आपके जो T.S. Eliot का ओपिनियन है एसोसिएट कर रहा है ऑप्शन नंबर ए. सो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिटिकल वर्क्स हैज़ बीन ऑथर्ड बाय एफ.आर. लेविस. तो मैं आपको बता दूं, एफ.आर. लेविस इंग्लिश लिटरेरी क्रिटिक है, वन ऑफ मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फिगर्स भी हैं ऑफ कोर्स 20th सेंचुरी लिटरेरी क्रिटिसिज्म के. और इनको इनकी मोरल सीरियसनेस इन क्रिटिसिज्म के लिए जाना जाता है, जहाँ पर आप देखेंगे ये एम्फेसाइज करते हैं ऑफ कोर्स क्लॉज रीडिंग्स को. ठीक है, अब यहाँ पूछा है कौन सा वर्क इनका लिखा है, तो वी हैव द आंसर द ग्रेट ट्रेडिशन. ठीक है, तो ये जो इनका वर्क है दैट इज़ 1948 में पब्लिश हो रहा है. और यहाँ पर इन्होंने एक्सप्लोर किया है ग्रेट इंग्लिश नॉवलिस्ट जैसे जैन ऑस्टेन, जॉर्ज इलियट, हेनरी जेम्स एंड जोसेफ कॉनरेड. यहाँ से क्वेश्चन आपको बन चुका है, examiner already have been asked in examination of your about the great English novelist. आपके जो F.R. Lewis discuss in his work The Great Tradition जो 1948 में यहाँ पे मेंशन है. और मतलब इन ऑथर्स को बेसिकली फॉर्म बताया है ग्रेट ट्रेडिशन का ऑफ इंग्लिश फिक्शन अकॉर्डिंग टू F.R. Lewis. अपार्ट फ्रॉम आप देखेंगे द प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म जो यहाँ पे मेंशन है, इट इज़ अगेन इम्पॉर्टेंट वर्क विच वॉज पब्लिश 1924. द नेक्स्ट वी हैव सेक्रेड वुड एंड पोएटिक्स. ठीक है, तो बेसिकली ये आपका टी.एस. इलियट के साथ एसोसिएटेड है. सो ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव 295, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिटिकल वर्क्स हैज़ नॉट बीन ऑथर्ड बाय. अभी पूछा था ऑथर्ड बाय, हैज़ नॉट बीन. तो द मीनिंग ऑफ मीनिंग, द ग्रेट ट्रेडिशन, न्यू बियरिंग इन इंग्लिश पोएट्री और आपका रेवोल्यूशन. सो गाइस बेसिकली आप देखेंगे द ग्रेट ट्रेडिशन, अभी मैंने आपको बताया 1948, इनका ईयर ऑफ पब्लिकेशन ज़रूर से ध्यान में रखना है. और न्यू बियरिंग इन इंग्लिश पोएट्री ये इनका 1932 आ रहा है. एंड रेवोल्यूशन इनका 1936 आ रहा है. ठीक है, जो बेसिकली डिस्कशन है फ्रॉम न्यू बियरिंग्स को ही कंटिन्यूसली इन्होंने डिस्कस किया है रेवोल्यूशन में भी. अपार्ट फ्रॉम द मीनिंग ऑफ मीनिंग, ये जो बेसिकली वर्क है इट इज़ एसोसिएटेड विद C.K. ऑगडन एंड I.A. रिचर्ड्स जो 1923 में आपका पब्लिश हो रहा है. ठीक है, तो ये सभी इंपॉर्टेंट हैं जो भी चारों मेंशन है यहाँ पे. बेसिकली इसका आंसर ए है ऑप्शन, नॉट ऑथर्ड बाय F.R. लेविस. तो द मीनिंग ऑफ मीनिंग है, अदरवाइज रिमेनिंग 3 आपके F.R. लेविस के हैं. Next we have Lewis. F.R. Lewis, The Great Tradition provides us with his critical opinion on, of course, novel based on. ठीक है, लेवीज जो है आपके रेवोल्यूशन प्रोवाइड्स अस विद हिज क्रिटिकल ओपिनियंस ऑन. यहाँ पर इन्होंने क्या बेसिकली अपने ओपिनियन को रिवील किया है पोस्ट शेक्सपियरियन पोएट्री को. ये सभी इंपॉर्टेंट थिंग्स है जो आपको अपने माइंड में रखना है. F.R. Lewis न्यू बियरिंग इन इंग्लिश पोएट्री प्रोवाइड्स अस विद द क्रिटिकल ओपिनियन ऑन, ऑफ कोर्स
मॉडर्न पोइट्री। तो तीनों ही आपके अलग अलग इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं जो इनके वर्क है, जहाँ पर इन्होंने इन्फेसाइज किया है। कहीं इन्होंने नॉवल को प्रेफरेंस दिया है, कहीं इन्होंने पोस्ट शेक्सपियरियन पोइट्री को, और सम टाइम ही टॉक्स अबाउट बियरिंग वाले वर्क्स में अपने बियरिंग इन इंग्लिश पोइट्री में मॉडर्न पोइट्री को। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें आपको फैक्ट्स अपने माइंड में रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट एफ आर लेविस मे बी ट्रू? सो आंसर वी हैव ऑप्शन नंबर ए, अनलाइक द क्रिटिक्स ऑफ द पास्ट लेविस now here lays down rules to judge the merit of a work. This is again important question. In which category? No, not category. We are just discussing about the question number. Yes. In which category can you keep the criticism of F.R. Leavis? Ontological criticism. ठीक है, अभी मेरे पास जो क्वेश्चन था मुझे डिस्कस करना था 300 था। ठीक है, आई जंप 301. विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवलिस्ट हैज नॉट बीन मेंशन इन लेवीज द ग्रेट ट्रेडिशन? तो किसको इन्होंने मतलब डिस्कस नहीं किया? जॉर्ज इलियट इन्होंने डिस्कस किया, जैन ऑस्टेन, जोसेफ कॉनराड मैंने आपको भी बताया था, इन तीनों को इन्होंने डिस्कस किया। थॉमस हार्डी ही डिड नॉट मेंशन इन हिज द ग्रेट ट्रेडिशन। ठीक है, ये चीज़ आपने ध्यान में रखना है। 1948 अगेन रिवाइज द ईयर ऑल्सो। Let's jump towards the 302. Which of the following statement is true about the critical opinion of F.R. Leavis? So the literature matters vitally to civilization. तो यही इनका बेसिकली स्टेटमेंट है जो ऑफ कोर्स इनका ओपिनियन भी है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू अबाउट द क्रिटिकल ओपिनियन? अगेन वी हैव अनलाइक द क्रिटिक्स ऑफ द पास्ट। ये मुझे लग रहा है रिपीट हो रहा है। सो गाइज फ्रॉम 304 यू सी द फुल नेम, यानी कि आई रिचर्ड्स से बेस्ड ऑन क्वेश्चन अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, तो मैं आपको रिवाइज करा दूं। आई रिचर्ड्स वन ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट है सबसे पहले यूजीसी नेट के लिए। इंग्लिश लिटरेरी क्रिटिक हैं, रिटोरिशियन है एंड स्कॉलर है। ऑफकोर्स पाइनियर कंसीडर किया जाता है प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म एंड न्यू क्रिटिसिज्म के लिए, और प्रोफेसर भी हैं ऑफकोर्स कैम्ब्रिज, जो इन्फ्लुएंस्ड है बाय C.K. ऑगलन। ठीक है, और इनके जो वर्क्स हैं, सबसे पहले द मीनिंग ऑफ मीनिंग, जो इनका भी मैंने डिस्कस किया था, को ऑथर्ड है विद C.K. ऑगलन के साथ। प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म 1924, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म 1929 एंड साइंस एंड पोएट्री 1926। ये 4 नंबर्स ऑफ वर्क जो मैंने आपको यहाँ पे मेंशन किए हैं, ये आपको ज़रूर से रिवाइज्ड रखने अपने माइंड में, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आपको मिलती है। अभी नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमें आएंगे उसके बाद में और आपको मोर डिटेल एक्सप्लेनेशन दे दूंगी। अभी देखिए यहाँ पे पूछा है फुल नेम क्या है, तो वी हैव एवर एमस्टन रिचर्ड्स। तो मैं आपको बता दूं यहाँ से भी दिस इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ PYQ, दिस ऑल्सो हैव बीन आस्क्ड इन एग्जामिनेशन ऑफ योर। ठीक है, अभी नेक्स्ट वी हैव रिचर्ड्स द मीनिंग ऑफ मीनिंग वाज रिटन इन कोलैबोरेशन विद द हूम, तो C.K. ऑगलन के साथ। 1923 द ईयर ऑफ पब्लिकेशन, ये चीज़ आपने ध्यान में रखना है। एंड यहाँ पर इन्होंने लैंग्वेज सिमेंटिक्स एंड कम्युनिकेशन को कहीं ना कहीं फोकस किया है। अभी नेक्स्ट वी हैव who wrote the book The Principle of Literary Criticism? Of course it was written by I.A. Richards, और मैंने आपको भी बताया भी था कि जो The Principle of Literary Criticism that is 1924 publication। ओके, ये चीज़ आपने ध्यान में रखना है। एंड यहाँ पर इन्होंने बेसिकली फाउंडेशन दिया है लिटरेरी थ्योरी एंड क्रिटिसिज्म को लेकर, राइट। अभी नेक्स्ट वी हैव विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नॉट बीन रिटन बाय I.A. Richards? तो द प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, यस इट इज रिटन बाय, ऑफ कोर्स अभी हमने डिस्कस किया 1924। द प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म 1929, जहां पर इन्होंने क्लोज रीडिंग एक्सरसाइज विद पोएम्स इंट्रोड्यूस किया है अपने वर्क में, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। एंड ऑफ कोर्स रिस्पॉन्स एंड अंडरस्टैंडिंग बेस्ड ऑन स्टडी इन्होंने डिस्कस किया है प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म अपनी इस बुक में, राइट। अभी नेक्स्ट वी हैव द फिलोसफी ऑफ रिटोरिक and the metaphysical poet. So of course this is not by metaphysical poet, it is not by I.A. Richards, otherwise remaining 3 आपके by I.A. Richards है। अभी next we have who is the author of the book Coleridge on Imagination? So we have I.A. Richards। सो गाइज बेसिकली ये जो बुक है I.A. रिचर्ड ने जो लिखा है कॉलरिज ऑन इमेजिनेशन 1929 में पब्लिश हो रहा है। तो ये जो इनका बुक है इसमें इन्होंने एनालिटिकल स्टडी किया है कॉलरिज की थियोरी ऑफ इमेजिनेशन को लेके एज फाउंड इन बायोग्राफिया लिटरेरिया, जो बेसिकली 1817 में उन्होंने फाउंड किया था। तो इन्होंने यहाँ पे एक्सप्लोर किया है बेसिकली डिस्टिंक्शन बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी इमेजिनेशन एंड फैंसी के बारे में। होप यू अंडरस्टैंड हियर। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव विच ऑफ दी following books was written by I.A. Richards in collaboration with C.K. Ogden and James Wood? So answer we have the foundation of aesthetics. Question number next. According to I.A. Richards, there are 2 uses of language. What are they? We have answer option number B, communicative and suggestive. Abhi next question. There are 2 ways in which impulses may be organized by exclusion and by inclusion, by synthesis and by elimination. The above line are critically opinion of which of the following? So we have the answer I.A. Richards.
Next, we have a poet in our time is a semi-barbarian in a civilized community. This line may be associated with which of the following critics? So it is also associated with I.A. Richards. What does Richards mean by the term synesthesis? ठीक है, जो इन्होंने सिंथेसिस ये जो टर्म दिया है इसका मीनिंग क्या ये निकालते हैं, अ हार्मनी एंड इक्विलिब्रियम ऑफ आर इम्पल्सिस. ठीक है, अभी नेक्स्ट वॉक question we have, of the following critics who is considered to be the most celebrated by the philosophers of 20th century. So we have 20th century, let me check first. So answer we have guys आपका I.A. Richards, option number D. अभी next question. गाइज मेरे को थोड़ा सा कन्फ्यूजन है फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में. इस क्वेश्चन को फिर से रीड करिए मैं, क्योंकि आपसे कह रही हूँ. ऑफ द फॉलोइंग क्रिटिक्स हु इज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट सेलिब्रेटेड बाय द फिलोसोफर्स ऑफ 20th सेंचुरी. मैंने इस लाइन को जस्ट आई डिडंट गिव अटेंशन टुवर्ड्स दिस इंपॉर्टेंट जो लाइन है, द फिलोसोफर्स ऑफ 20th सेंचुरी. सो आंसर हमारा जाएगा जैक्स डेरिडा. अभी क्यों? क्योंकि देखिए डेरिडा वॉज मेजर फिगर थे 20th सेंचुरी के फिलोसफी, स्पेशली पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म एंड कंटिनेंटल फिलोसफी में हम इनको स्टडी करते हैं. तो ओवरऑल आप देखेंगे कि जो एफ.आर. लेविस है ये कहीं ना कहीं सेलिब्रेट कर रहे हैं इंग्लिश लिटरेरी क्रिटिसिज्म को, टी.एस. इलियट पोएट एंड क्रिटिक को, आई.ए. रिचर्ड कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म को. तो अगर मैं फिलोसफी की बात करूँ फिलोसोफर, सो वी हैव ओनली जैक्स डेरिडा हियर. तो इसी तरीके से कंफ्यूजन होता है एग्जामिनेशन में भी. यू प्लीज़ जस्ट बी प्रिपेयर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन आपको ज़रूर से कंफ्यूज कर सकते हैं. तो हियर यू सी, यहाँ तक पढ़ने पर बिल्कुल सिंपली लग रहा था आई.ए. रिचर्ड्स वी आर जस्ट गोइंग टू, बट द फिलोसोफर की जब बात हुई है तो वी हैव जस्ट कम टू नो जैक्स डेरिडा हियर. ओके, क्वेश्चन नंबर 316, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स हैज़ नॉट बीन रिटन बाय डेरिडा. सो यहाँ पर आपसे जैक्स डेरिडा से एसोसिएटेड क्वेश्चन है. सो ऑफ ग्रामेटोलॉजी, द पोस्ट कार्ड फ्रॉम सॉक्रेट्स टू फ्रूड एंड बियॉन्ड, यूलिसिस ग्रामोफोन, हियर से येस इन जॉयस. तो दीज ट्रायो बुक्स आर बाय आपके जैक्स डेरिडा. अदरवाइज डिस्कवरीज अभी हमने एफ.आर. लेविस का स्टडी किया ना पीछे, उनके थ्रू लिखा गया है. अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, जैक्स डेरिडा वॉज एन एग्रेरियन बॉर्न इंटेलेक्चुअल, राइट. सो बेसिकली आप देखेंगे एसोसिएटेड फ्रेंच, बिकॉज वी ऑल नो फ्रेंच फिलोसोफर, लिटरेरी थियोरिस्ट एंड क्रिटिक ही इज, नॉट ही इज, ही वॉज, क्योंकि 1930 to 2004 इनका टाइमलाइन है. एंड फाउंडर भी है ऑफकोर्स ये डीकंस्ट्रक्शन के, वी ऑल नो अबाउट इट. अभी नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, हु इज नॉन एज द फादर ऑफ डीकंस्ट्रक्शन, राइट. सो आंसर वी हैव कॉस जैक्स डेरिडा. नेक्स्ट वी हैव, आई बी बिलोंग्स टू विच पीरियड. जो आपके इरविंग बैबिट हैं बिलोंग्स टू विच पीरियड. सो फ्रेंड्स ये जो आपके इरविंग बैबिट हैं ये अमेरिकन लिटरेरी क्रिटिक हैं एंड ऑफ कोर्स स्कॉलर भी हैं, लीडिंग फिगर भी हैं न्यू ह्यूमनिज्म जो आपका मूवमेंट है, इन दैट पर्टिकुलर मूवमेंट इनका एसोसिएशन है. और इनका जो टाइमलाइन है वी हैव 1865 to 1933. ये कहीं ना कहीं एम्फेसाइज करती है न्यू ह्यूमनिज्म में मोरल एंड इथिकल स्टैंडर्ड्स इन लिटरेचर, इंपॉर्टेंट है. और इनके कुछ वर्क्स भी हैं जैसे लिटरेचर एंड अमेरिकन कॉलेज, the new humanism and so and so forth, you see the work also. So important है. अभी next question we have, he was educated at, तो he was educated at Harvard University. ठीक है. Next he was a professor of French at, so where Harvard, of course जब Harvard University है. तो next we have, he was an outstanding scholar, critic and leader of, देखिए अभी मैंने आपको बताया न्यू ह्यूमनिज्म मूवमेंट से एसोसिएशन है आपके वी हैव इरविंग बैबिट. ये नेम आपने ध्यान में रखना है. आई नो यू अनफैमिलियर विद दिस क्रिटिक, बट अमेरिकन क्रिटिक है, इंपॉर्टेंट है. एंड ऑफ कोर्स इनका जो एसोसिएशन है इट इज़ न्यू ह्यूमनिज्म मूवमेंट से. ओके, नेक्स्ट वी हैव, बैबिट हैज़ प्रेजेंटेड अ डिस्कशन ऑन क्लासिकल थियोरीज एंड रिमोट कॉन्सेप्ट्स ऑफ स्पॉन्टेनिटी इन. Answer we have option number C, on being creative. Now the next question, the new criticism in America was influenced by. So in America if I talk about जो new criticism है it is by T.S. Eliot and I.A. Richards. Okay, अभी next question we have, which book of criticism are almost the source of modern criticism. So we have Eliot's The Sacred Wood and Richards का Principle of Literary Criticism are considered almost source of modern criticism. Next question, the tenets of new critics in America are, so you see close examination of the text, analysis, style and imagery. So guys, let's check this question, it's very important. The function of a critic is to put the reader in possession of the work of art. Who said this? This is by Clint Brook. It is important and you have to memorize this. Okay, what is book of contribution
द वेल रॉट ऑन। सो गाइज मैं आपको बता दूं इट इज़ बाय क्लिंट ब्रूक एंड इसका फुल टाइटल वी हैव द वेल ब्रॉट ऑन स्टडीज इन द स्ट्रक्चर ऑफ पोएट्री। ये इनका जो वर्क है द वेल ब्रॉट ऑन, कई बार एग्जामिनेशन में आपसे पूछा गया एंड इट इज पब्लिश 1947, राइट। इंपॉर्टेंट है, ऐसी कलेक्शन है, क्रिटिकल बुक है, नॉट अ नॉवल और पोएट्री इटसेल्फ, राइट। तो ये जो इनका बुक है बेसिकली कलेक्शन है, क्लोज रीडिंग एंड एनालिसिस ऑफ अ नंबर ऑफ सेलिब्रेटेड इंग्लिश पोएम्स रेंजिंग फ्रॉम अर्ली मॉडर्न पीरियड टू 20th सेंचुरी। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर जो पोएम्स हैं इन दिस पर्टिकुलर कलेक्शन यू सी, उसमें पोएम डिस्कस की हैं जिसमें वर्क्स लाइक जॉन डन, शेक्सपियर, मिल्टन, आपके ग्रे हो गए, वर्ड्सवर्थ हो गए, टेनिसन हो गए, यीट्स हो गए, मतलब वी हैव मोर, राइट। सो आर्ग्यूमेंटेशन भी दिया है कि किस तरीके से ट्रीट किया जाता है अ पोएम को एज अ सेल्फ कंटेन्ड एंड ऑटोनोमस वर्क। सो दीज इंपॉर्टेंट थिंग्स आपको ध्यान में रखना है। और फेमस कॉन्सेप्ट फ्रॉम द बुक आपसे जो एग्जामिनेशन में पूछा है, द हेरेसी ऑफ पैराफ्रेज, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, बट अगर आगे आएगा तो मैं आपको मेंशन कर दूंगी। होप यू अंडरस्टैंड एंड फेमिलियर विद दिस, क्योंकि यहाँ पे स्पेस नहीं है। द हेरेसी ऑफ पैराफ्रेज जो बेसिकली है कॉन्सेप्ट है फ्रॉम द बुक का वी हैव द वेल रॉट ऑन। तो आप देखेंगे इसमें इन्होंने जो आइडिया दिया है, इट्स अ पैराफ्रेजिंग अ पोएम, राइट, यानी कि पुटिंग इट इनटू प्लेन प्रॉस और समरी, राइट। सो मैं बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं जाऊंगी बिकॉज इट नॉट फाइन अकॉर्डिंग टू मी, बट यू सी क्वेश्चन में जो आंसर है, मैंने आपको कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे इस बुक का बता दिया क्योंकि दिस इज रिपीटेड इन एग्जामिनेशन ऑफ योर, और जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया इट ऑल्सो एसोसिएटेड विद एग्जामिनेशन ऑफ योर फेमस कॉन्सेप्ट एक्चुअली इंट्रोड्यूस। सो अभी क्वेश्चन का आंसर वी हैव, इट हैज़ यूज्ड हिज क्रिटिकल टूल्स डेक्स्ट्रॉक्सली इन एनालिसिस ऑफ अ नंबर ऑफ पोएम्स स्पेशली कीट्स ऑड्स। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको सारा कुछ एक्सप्लेन कर दिया रिगार्डिंग दिस बुक, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लिंट ब्रूक्स हैज़ मैनली यूज्ड हिज क्रिटिकल टूल्स ऑन, तो बेसिकली अभी हमने पीछे बात किया था तो नंबर्स ऑफ पोएम्स, सो ऑफ कोर्स पोएट्री में इन्होंने अपने जो क्रिटिकल टूल्स हैं उनको कहीं ना कहीं एग्जामाइन किया है। क्लिंट ब्रूक वन ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड है एग्जामिनेशन परस्पेक्टिव, अमेरिकन लिटरेरी क्रिटिक हैं, स्कॉलर है एंड वन ऑफ द फाउंडर भी हैं ऑफ न्यू क्रिटिसिज्म मूवमेंट के। ठीक है, ये सभी चीज़ें आपको ध्यान में रखना है और इनका भी कहीं ना कहीं एम्फेसाइज रहता है क्योंकि न्यू क्रिटिसिज्म से एसोसिएशन है एंड एज ए कॉन्ट्रीब्यूटर ही इज ऑफ न्यू क्रिटिसिज्म यू सी क्लोज रीडिंग, टेक्चुअल ऑटोनॉमी एंड फॉर्मल एनालिसिस को कहीं ना कहीं एम्फेसाइज देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द सदर्न मूवमेंट वॉज प्राइमरली agrarian but also included aesthetics and interpretation of difficult poetry. Abhi next we have Clint Brook is associated with the Southern movement which is manifested by his association with Southern Review and the Canyon Review, right? Abhi next we have Clint Brooks an approach to literature presents an academic concern hai by using new criticism technique, right? Clint Brook wrote Understanding Poetry, Understanding Fiction, Understanding Drama. Who is co-author of these books? So, co-authored the book on drama was written with R.B. Hellman and the other two with R.P. Warren. Okay. Next question, which book he wrote with, he मतलब आपके Clint Brook, V.K. Wimsett during his days at Yale University. So, answer we have Literary Criticism, A Short History. Okay. What did Ransom declare about Brooks? Modern Poetry and Tradition 1939 and The Well-Burt on 1947. ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली आंसर वी हैव द बेस्ट लिविंग इंटरप्रेटर ऑफ डिफिकल्ट वर्ड्स। Who has written The Double Agent? Answer we have R.P. Blackmore. Who has written The Expense of Greatness? R.P. Blackmore. And from whom did Blackmore derived the naturalistic motive? So we have George Santayana. सो अभी आप सोच रहे होंगे हु इज़ R.P. ब्लैकमर, तो मैं आपको बता दूं जो R.P. ब्लैकमर है अमेरिकन लिटरेरी क्रिटिक हैं, पोइट हैं, प्रोमिनेंट फिगर हैं ऑफकोर्स 20th सेंचुरी के। लिटरेरी क्रिटिसिज्म से एसोसिएशन है इनका, एज वेल न्यू क्रिटिसिज्म, राइट, एंड फॉर्मलिज्म, राइट। सो ये चीज़ आपने ध्यान में रखना है और ये भी कहीं ना कहीं एम्फेसाइज कर रहे हैं क्लोज रीडिंग को एज वेल फॉर्मल एनालिसिस। ठीक है, तो इनका जो फोकस है इट इज़ गोज टूवर्ड्स द पोइटिक फॉर्म, लैंग्वेज एंड एस्थेटिक एक्सपीरियंस रेदर देन बायोग्राफी और हिस्ट्री कॉन्सेप्ट्स।
ठीक है, ये चीज़ आपने ध्यान में रखना है। एंड 2 और 3 क्वेश्चंस इनसे एसोसिएटेड आपने माइंड में रिवाइज रखने हैं, क्योंकि यू कैन गेट द क्वेश्चन इन योर एग्जामिनेशन। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव 3, 4, 6। लियोनल ट्रिलिंग वॉज एसोसिएटेड विद विच यूनिवर्सिटी इन अमेरिका। तो देखिए आंसर भी है कोलंबिया। तो मैं आपको बता दूं जो आपके लियोनियल ट्रिलिंग है ये भी आपके अमेरिकन लिटरेरी क्रिटिक है। तो सम इंपॉर्टेंट अमेरिकन लिटरेरी क्रिटिक में यहाँ पे आपको रिवाइज करा रही हूँ। सी अमेरिकन लिटरेरी क्रिटिक है, एसेइस्ट है और प्रोफेसर भी है ऑफकोर्स कोलंबिया यूनिवर्सिटी में। एंड लीडिंग फिगर है 20th सेंचुरी ऑफकोर्स लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड कल्चरल कमेंट्री। ठीक है, और ये बेसिकली पार्ट भी है न्यूयॉर्क इंटेलेक्चुअल ग्रुप के। न्यूयॉर्क इंटेलेक्चुअल ग्रुप से भी इनका एसोसिएशन है आपके ट्रिलिंग का। सो ये चीज़ भी आपने ध्यान में रखना है। एंड यहाँ सिंपल क्वेश्चन था और आपसे आगे पूछा है ही वॉज एफिलिएटेड विद। सो कैनियन स्कूल ऑफ इंग्लिश से कहीं ना कहीं एफिलिएटेड है आपके हु, लियोनल ट्रिलिंग आई एम टॉकिंग अबाउट। नेक्स्ट वी हैव लियोनल ट्रिलिंग वॉज एसोसिएटेड विद लिटरेरी मैगजीन लाइक। तो कौन सी बेसिकली मैगजीन है जिसके साथ इनका एसोसिएशन है? द कैनियन रिव्यू एंड पार्टीसन रिव्यू। आपको बता दूं फ्रॉम द मैगजीन ऑल्सो यू गेट क्वेश्चन मल्टीपल इन एग्जामिनेशन ऑफ योर। यू हैव जस्ट नॉलेज अबाउट मैगजीन्स एज वेल द ईयर इट मतलब स्टार्टेड और द फिगर्स एसोसिएटेड विद इट। ये सभी चीज़ें आपको अपने माइंड में सस्टेन करना है। जैसे कैनिया रिव्यू हो गया, पार्टीसन रिव्यू हो गया, सदर्न रिव्यू हो गया, आपका लिटरेरी क्रिटिक क्राइटेरियन हो गया। ये सभी आपसे एग्जामिनेशन में रिपीटेड फॉर्म में पूछी जाती है। येस बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बने अभी 225 में, बट बिफोर 225, बट ऐसा नहीं है नहीं बने। 2 और 3 क्वेश्चन अभी भी आपके कहीं नहीं गए फ्रॉम दी मैगजीन परस्पेक्टिव। सो आपने इसे भी प्रॉपर मैनर में स्टडी करना है। Let's discuss some more questions, based on literary criticism, of course. Who is the special literary target of Aristophanes in Frogs? So, answer we have Euripides. तो गाइज मैं आपको रिवाइज करा दूं, अरिस्टोफेंस आपके कहीं ना कहीं एंशियन ग्रीक प्लेराइट हैं एंड फेमस है ऑफ कोर्स ओल्ड कॉमेडी, जहाँ पर आपको ब्लेंडिंग्स मिल जाएगा सटायर, पॉलिटिकल एंड ह्यूमर का। तो इट इज़ एसोसिएटेड एरिस्टोफेंस का जो ये फ्रॉग्स है, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, इट्स अ कॉमेडी। एंड यहाँ पर इन्होंने बेसिकली टारगेट किया है आपके यूरिपिडीज को। यूरिपिडीज कौन है? सो गाइज मैं आपको बता दूं ये आपके एंशियन ग्रीक ट्रेजिडियन है, वन ऑफ द 3 ग्रेट ट्रेजिडियंस में से एक है ऑफ क्लासिकल अथेंस के, राइट। सो वी हैव अस्टाइलस एंड सफोकलिस अलॉन्ग विथ यूरिपिडीज। तो ये 3 आपके ग्रेट ट्रेजिडियंस हैं क्लासिकल अथेंस के, एंशियन ग्रीक ट्रेडिशन के, जहाँ से आपको कई बार क्वेश्चन एग्जामिनेशन में मिला है। यू हैव नॉलेज अबाउट इट, ओके। In Plato's Ion, as in Frogs of Aristophanes, literary criticism takes the form of a dramatic. So it's a dialogue. ठीक है, dramatic dialogue. अभी next we have which English poet translated the Ion and was deeply impressed by it? So we have the answer Shelley. Next we have in which of the following works of Plato a useful kind of right opinions is consented to all poetic persons. So answer we have Meno. ठीक है, what should be the ideal age of the poet according to Plato in laws? तो बेसिकली लेस देन 50 जो इनका लॉज आया ना उसके अकॉर्डिंग इन्होंने एक आइडियल एज सजेस्ट किया है ऑफ कोर्स प्लेटो का। अभी नेक्स्ट वी हैव विच आर द 2 मेजर कैटेगरीज इनटू विच प्लेटो डिवाइडेड आर्ट। वो कौन सी कैटेगरीज है? एक्विजिटिव एंड प्रोडक्टिव। नेक्स्ट वी हैव into which category of art did Plato put reflections, dream and shadows? So answer we have here divine. Next page पर है but I'm just writing here divine the answer to this question. Next question, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द वर्क ऑफ अरिस्टोटल। सो देखिए यहाँ पे कुछ वर्क मेंशन है लाइक एथिक्स हो गया, मेटाफिजिक्स हो गया, पॉलिटिक्स हो गया, पूछा है नॉट वन ऑफ दी, कौन सा नहीं है? सिंपोजियम इज नॉट एसोसिएटेड, क्योंकि सिंपोजियम आपका कहीं ना कहीं प्लेटो के साथ एसोसिएटेड है। सो आपने इन टाइटल को अपने माइंड में रिवाइज रखना है, यहाँ से मैचिंग्स क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन यू गेट इन एग्जामिनेशन ऑफ योर यूजीसी नेट, ओके। विच वर्क ऑफ अरिस्टोटल हैज बीन कॉल्ड एक्रोमेटिक by Aristotelian to be interpreted only with the help of other and larger works. So we have Poetics. Next question, in which of his works Aristotle has distinguished between false and affects a poem as such and those which do not? So answer we have Poetics. In Poetics, Aristotle argued that poetry is more philosophic and more serious than we have history. ठीक है,
It is also statement regarding Aristotle too. According to Aristotle, art जो होता है वो finish करता है the job that nature leaves undone. Now let's discuss question number 365. Which of the following terms as used by Aristotle means a sudden turn? So answer we have peripeteia. ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन भी एग्जामिनेशन में मिलता है, peripeteia associated with, right? So answer we have Aristotle. Which of the following in Aristotelian vocabulary means the plot? So answer we have mythos. ठीक है. Which of the following is not a part of hamartia? Human will. Otherwise, error of punishment and fate and tragic consequence are the part of hamartia. Otherwise, human will is not a part. Next question. Which of the following types of anagnosis is most effective according to Aristotle? All of above. Yani ki the scar discovered in the bath by Odysseus when Orestes makes himself known to, Iphigenia, the messenger in Oedipus. So all are effective according to Aristotle in type of anagnosis. Here we have next question. Whose characters is a further developed of Aristotelian division of the tragedy and the comedy? So answer we have Theophrastus. Okay. Next question. According to Aristotle, imagination, symbol and paradox are the characteristic of tragedy. According to Aristotle, reason, concepts and contrast are the characteristic of, so these are the characteristic of comedy. Aristotle's rhetoric opens with the statement rhetoric is a counterpart of, dialectics, right? Abhi next we have in poetics and the rhetoric as well of oft quoted statement is that the greatest poetic gift is to be master of the metaphor, right? Abhi next we have who wrote in his De Orator that if an orator is distinguished from a philosopher, the philosopher would be inferior to Cicero. So guys, now I end my video and we have discussed more question in today's video. In fact 1 hours भी हमारा up हो गया है videos में इस particular. So basically आपने क्या करना है, इन सभी question को once more you have to revise before your examination क्योंकि ये इतने important question है and you trust me from anywhere you can't get, right? So obviously what's your work is आपने इन सभी को रिवाइज करना है और 400 अप्रॉक्स हम लोग क्वेश्चन हमारे अभी तक कंप्लीट हो चुके हैं इन दिस सीरीज ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म बेस्ड ऑन, अभी फर्दर क्वेश्चन कुछ और बचे हैं बट मैं क्या करूँगी अभी उसमें से भी मोर सिलेक्शन करूँगी क्वेश्चंस का और मोर सेलेक्टिव क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करूँगी. आई नो इनफैक्ट आई अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ टाइम एंड वी हैव नो मोर टाइम फॉर एग्जाम बट यू प्लीज़ जस्ट रिवाइज ऑल द क्वेश्चन आई प्रैक्टिस विद यू ऑल क्योंकि ये आपको बहुत हेल्प कर रहे हैं. Anyhow you are just practicing for further examination of your, so it is you just give value of your time, right? Best revision you guys can call it. Baki if you new to my channel don't forget to subscribe and after watching don't forget to like the video. We will meet in next video. If you want to get PDF forms of questions you can join the membership of my channel Scholar Second. You have to join and comment me then what you want, okay, which notes you want, so I'll upload the video of members only where I discuss with you all.